درود سے پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی علیہ بیت صاحب بارک وسلم صلی وسلم علیہ وآلہ مجمعین صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ باقی بڑا ہوگا 35 میں اذان ہوتا. دیری لینا اذان پکارے والا 2-3 منٹ لگ رہے کرے. پیچھے بہت سا یہ پکارے شروع کر دو سکینہ رواں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں سے کار ہمارا مطلب زیادہ جاتا ہوں سب جہاں سے پیر ہے نا. درود شریف پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی علیہ بارک وسلم علیہ وآلہ مجمعین صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف فاتحہ پڑھے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. آگے ہفتہ میں یہی تقریر ہم نے کیا تھا تو بہت سارے لوگ پھر آزاد ہو گئے ہیں، وہ نہیں سنے ہوں گے. ہم نے سب کو نماز کی تعلیم دی ہے کہ آپ جائیے نماز پڑھیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے. تو ایسا کر رہے ہیں، کر دوں گا نا. تو اب شریعت کا سامان تھوڑا سا بتائے، تھوڑا پھر طریقت بتائے. تو ہم آگے ہفتہ میں یہی تقریر کیے تھے کہ پہلے شریعت نبھانا ہے. تو شریعت میں اتنا تک نبھانا ہے جتنا تک ہمارا حد ہے. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا
اور رشتہ داری، مہمانی، اتنا ہی نبھانا ہے جو ہمارے حد میں ہے۔ شریعت کا شادی نکاح بیاہ ہے، یہ نبھانا۔ ہم کو عالم نہیں بننا ہے، تقریر نہیں کرنا ہے، مفتی نہیں بننا ہے، فتویٰ نہیں دینا ہے، لیکن ہم کو جتنا ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق شریعت کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا۔ ہمارے حد میں وہی چیز ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا جلنا تو اتنا سیکھیں گے، کس ڈھنگ سے ملیں گے جلیں گے۔ کھانا پینا ہے تو اس ڈھنگ کو سیکھیں گے کہ ہمیشہ ہم کو کھانا پینا ہے۔ پھر رشتہ داری ہے، مہمانی ہے، یہ ڈھنگ سیکھنا ہے تاکہ جو ہمارے حساب میں ہے نہانا دھونا، اس کو ہم کو سیکھنا ہر آدمی پر ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کے راستے میں آ جائیں۔ ہمارا قاعدہ قانون جو ہے ظاہری وہ اسلام کے حساب سے ہو۔ اتنا سب کو نبھانا ہے، آپ لوگوں کو بھی نبھانا ہے۔ سب کو عالم تو نہیں بننا ہے، لیکن حساب کتاب تو بھائی اتنا رکھنا پڑے گا تاکہ ہم بے قاعدہ تو نہیں نہ رہیں گے۔ اس میں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو جو آگے والا ہے ہمارا اس سے پوچھ لے۔ اور اس کے بعد یہ ہم اب اللہ رسول کا بندگی کریں گے، اللہ کا بندگی کریں گے تو بندگی سیکھنا ہے۔ 5 وقت نماز ہے، کلمہ ہے، روزہ ہے، اور خیرات زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کا ہم کو قاعدہ قانون معلوم کرنا ہے۔ اور ہمارے پڑوس میں کوئی کھایا ہے نہیں کھایا ہے، پہنا ہے نہیں پہنا ہے، مجبور ہے کیا ہے، پڑوسی کا حق جانے کہ پڑوسی کا ہمارے اوپر کتنا حق ہوتا ہے، یہ سب سیکھ لینا۔ یہ عام چیز ہے۔ ہم طہارت سے کیسے رہیں گے، پاک کیسے رہیں گے، تو ہماری کپڑا پاک ہونا چاہیے، ہم کو وضو سے رہنا چاہیے تاکہ ہم سے گندی بات نہ نکلے زبان سے۔ یہ باہری ساری چیزیں ہیں، اس کو سب کو جاننا۔ جو آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ چیز پہ غور کرنا، سیکھ لینا ہے۔ اب ہم عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھے زیادہ اس کو آگے بڑھائے تو اشراق کا نماز ہے، چاشت کا نماز ہے، اوابین کا نماز ہے، تہجد کا نماز ہے۔ 4 ٹائم اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی ہم بندگی کریں، نفل نماز اور بڑھا لیں تو اللہ اس سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ باہری ہے۔ تو ہم بندگی کرتے ہیں تو اس کا بندہ ہے، اور بندگی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بندے سے بھی باہر ہو گئے۔ تو پہلا یہ کام سب کو کرنا چاہیے۔ اب جب ہم اس میں اچھے ہو گئے تو اس میں اسلام سکھاتا ہے کہ سب سے 1 نمبر کا مسلمان کون ہے۔ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمان بنتے ہیں۔ 1 نمبر کا مسلمان، اس میں بھی تو درجہ ہے کہ 1 نمبر کا مسلمان ہم کیسے بنیں۔ 1 نمبر کے مسلمان بننے کے لیے اب یہ روزہ نماز نہیں، اللہ کہتا ہے 1 نمبر کا مسلمان وہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے تو اللہ ہی کی بات نکلتی ہے۔ 1 نمبر کا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ 1 نمبر کا مسلمان ہے۔ تو ہم الحمدللہ جب بندگی کرتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کو اپنا حاکم مانتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب اللہ لے گا، تو مالک یوم الدین۔ اب اس کے بعد جب اس کی تعریف ہو جاتی ہے، اللہ کی پہلی تعریف ہوگی، اس کے بعد اللہ پھر موقع دیتا ہے۔ یہ سب کلام تو اللہ ہی کا ہے، لیکن ہم بندے کو موقع دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو اب اللہ سے عاجزی سے مانگ رہے ہیں کہ ہم کو صراط المستقیم
اور انعمت علیہم دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ راستہ ہم نہ پائیں جس پہ اگلے لوگ نے غلطی کی ہے تو اس پہ قہر نازل ہو گیا، ویسے سے ہم کو بچا لے۔ تو ہم مانگتے ہیں صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اب سیدھا راستے پہ غور بھی کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ پر غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے، قدر کا فون آ گیا مقام گڑبڑا گئی وغیرہ کٹ گئی نہ کٹی تو جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیرا ہی عبادت کرتا ہوں، تیہی سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تو صراط المستقیم، سیدھا راستہ، تو بندگی کا راستہ یہ نہ مانگتے ہیں ہم۔ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، تو ہم دنیا کا سامان مانگتے کہ اللہ ہم کو ایک مکان دے دے، کہہ ہی دیا ہے ہاں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو گھر مانگتے، باغیچہ مانگتے، زمین مانگتے، تو یہ سب نہیں لکھا بلکہ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کے بھیجا ہے، اب صرف ہم کو بندگی کرنا ہے، کھانا پینا اوڑھنا بستر سب دے کے بھیجا ہے، سارا انتظام کر کے بھیجا ہے تاکہ تم کو اور چیزوں میں پھنسنا نہ پڑے، صرف ہماری بندگی کرو۔ اس لیے کہا سیدھا راستہ، اللہ کا سیدھا راستہ اللہ کی قاعدہ قانون ہے۔ ہاں اللہ کی عبادت کس طرح کریں، تو اس طریقے پر اگر ہم کریں گے تو اللہ تک راستہ ہے، اور انعام والا راستہ۔ تو جب اس کو ہم کر لیں گے، اس راستے پہ فائز ہو جائیں گے، ہم اس کی بندگی کیے تو بندہ کہلائے۔ تو ہمارے اور بھی برادری ہے، مولانا ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، سارے کے ہیں، سارے لوگ ہیں، سب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد جو ہے نا اب دوسرا راستہ نکالتا ہے، انہی لوگ صحیح ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جاہل آدمی تک اس کے دیکھ کر کے چلتے ہیں، لیکن انہی لوگ فتنہ میں مبتلا ہو گیا، صراط المستقیم کو چھوڑ دیا۔ تو اب ہم جیسا دیکھا حافظ جی ویسی کر رہے ہیں تو ہم بھی ویسی کریں گے۔ تو پہلے ان لوگوں کو ہی چاہیے کہ سدھریں، صراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم کو صحیح راستہ صحیح دیکھتا ہے کہ نہیں ہمارے راستے پہ چلنے والا ہو گیا، تو اب آفر کرتا ہے، اس بندگی سے، بندہ بننے سے اب ہم کو بڑی بہترین سامان دیتا ہے کہ تم ہمارا سچا بندے ہو، ہاں تو اب ہمارے بندگی سے اب کر ہی رہے ہو، لیکن اب تم کو نکال کے میں اپنا دوست بناؤں گا۔ اس میں جو اچھے ہیں اپنی نیت ارادے کو درست رکھا ہے کہ نہیں ہم کو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، تو اللہ اب بندے سے نکال کر کے دوست میں لے آتا ہے۔ تو یہ تو ایمان والی ہے ہی ہے، صراط المستقیم پہ جو چلا اور کلمہ جو پڑھا تو اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان سے اللہ تعالیٰ دوست بنا کے مومن کے درجے میں لاتا ہے، ایک درجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مومن اب ہمارے مولانا لوگ تیار حساب کتاب اب روزہ نماز کریں گے تو ایسے ہی مومن کہلائیں گے، نہیں، اس کا راستہ اللہ نے بنایا ہے، ایمان لاؤ۔ یہی تو بہت خراب کام تھا۔
होशियार रहा, बात सुना, उस पर अमल की तो अल्लाह से तौफीक मांगते रहो कि अल्लाह हम जो सुन रहे हैं उस पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब में जो सूझ जाई तब अपन किस्मत खोई, का जबान से निकल दी तोहरा खातिर फायदा रही। अरे टूटल फूटल जबान तो हमार बटले बा, आलिम तो है ही ना, हाँ, कि खूब तराश किया अच्छा से निकाली, सीधा हुआ बोलो तनी कि सबके समझो में आ जाए। तो सोइए मत, कभी इधर ख्याल रखिए कभी उधर ख्याल रखिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो नाक बजे रहते तो मैं का जानते नहीं। बहरहाल जरूर से पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद तो जो आदमी नमाज रोज़ा हज ज़कात करने लगा उसको अब आगे का सूझता नहीं, क्योंकि जाहिर यही है, लेकिन कलम पाक उसको आगे बढ़ाता है। हाँ, तो जब कलम पाक आगे बढ़ाएगा तो कलम पाक को हमको चाहिए सीखना। तो मोमिन का दर्जा आता है, मुसलमान से अब अल्लाह कहता है अब तो ईमान वाले आप है ही हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पे। अब दोस्त बने तो अब दोस्त आपको अपने ई में ले लिया। अब मोहब्बत की बात है कि हम मोहब्बत वाली बात एक भी रायगा नहीं जाती है। हाँ, जब अल्लाह मोहब्बत करता है आप भी मोहब्बत जब करेंगे तो एक बात रायगा जाएगा कि हमारे महबूब को पता नहीं ये पसंद हो, हमारे महबूब को ये पसंद हो। हाँ, तो अब बंदा बनने में तो ये है कि भाई हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो नमाज पढ़ता है हाली हाली पकड़ के ना पढ़ता है ना, जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, पढ़ कर हो गया फुर्सत। जैसे एक मजदूर काम कर रहा है उसको 8 घंटा के बजाय 7 घंटा कहता है काम करें, 1 घंटा उसमें छुट्टी खाने पीने के लिए, तो 7 घंटा काम किया, उसके बाद जल्दी से हाथ पर पूछा। अब हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, बंदा का मतलब यही है गुलामी, गुलामी कर ली बस काम ख़त्म। तो 5 वक्त नमाज पढ़ लिया, जैसे तैसे पढ़ लिया, काम हो गया चल दिया, लेकिन उससे अब आगे का रास्ता है। हाँ, तो अब उसके अब दोस्त थोड़ी भागेगा, अब मोमिन बना तो मोमिन नहीं भागता। एक आदमी अपने नौकर को ले करके बाजार गया। हाँ, अब बाजार ले करके आया तो वो मोमिन था लेकिन था नौकर। तो कहा कि हुजूर आपका इजाज़त हो, क्योंकि हम आपके गुलामी में हैं, आपका इजाज़त हो तो थोड़ा हम नमाज पढ़ लेते हैं। तो कहा ठीक है जाओ पढ़ लो, हम यहीं रहते हैं। तो गेट पे बैठा था, अब वो गया मस्जिद में तो भाई अल्लाह का दोस्त है और उसमें देर हो रहा है सुना, तो बोल रहा है कि अरे भाई निकलो, कब तक रहोगे उसमें। हाँ, तो अब उसमें से आवाज़ देता है हुजूर हमको आने नहीं देते। हाँ, कैसे आए? बोले कौन नहीं आने देता? तो कहता है कि जो आपको मस्जिद में नहीं आने देता, गेटी पर रोका है, वही हमको मस्जिद से निकलने नहीं देता। तो कहा अच्छा ये बात है। तो हम भी अब वो भी नमाज़ पढ़ने लगा, नहीं अल्लाह का हुक्म मानेंगे ना। तो अब ये दोस्ती का मामला है। हाँ, तो जब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जब ये ईमान लाता है एक पर। हाँ, अभी तो सबको मान रहा था ना कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। हाँ, ठीक है जायज़ है,
सब पे ईमान है कि अल्लाह के नबी हैं। जी। हाँ, तो और भी है सबको मानना। हाँ, ये वली अल्लाह के वली है, अल्लाह के ऐसे हैं वैसे हैं, सबको मानो। हाँ, किसी में तफरीक मत करो। कलम पाक में आया ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, मैं किसी में बांटता नहीं हूँ, लेकिन एक पे ईमान रखना। तो अब एक नायब रसूल अब मिलेगा, रसूल तो नहीं। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में एक सहाबी थे, दरवाज़ा से चले। हाँ, चल अब तो पहुँचने टाइम में आई तो आई वहाँ से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में एक सहाबा इकराम कहे कि या रसूलल्लाह तौरेत में ऐसा ऐसा बात लिखा है। हाँ, कहा हाँ हाँ ठीक है लिखा है, लेकिन अब तुमको कुरान पे चलना है। वो अगले नबी का बात है, वो भी सही है, लेकिन तुमको कुरान पे चलना है। जो हम किताब लेके आए हैं उस पे ईमान रखो कि सही है, वो किताब भी सही है और नबी भी सही है, लेकिन चलना हमारे हुक्म से है और हम जो किताब लाए हैं इस पे चलना। ये कानून अब राइज रहेगा। इससे राइज हो गया ना कि जिसके हाथ पे तुम वादा करते हो तो अब उसके हुक्म में, वो अल्लाह के रसूल का नायब रसूल हो चाहे रसूल है, अब उसको लेके चलना पड़ेगा। इसमें है ना आमर रसूलों में, हाँ इसमें भी है। तो एक पे चलना, एक को मान के चलना, वो होता है मुर्शिद, अल्लाह की बात बताने वाला नायब रसूल। तो वो चीज़ नहीं है सरकार। अब तो भाई नबूवत ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब इसी चीज़ को नायब रसूल लेके चलता है तो नायब रसूल कहलाता है। अब उसके हाथ पे ईमान लाना। तो अब वही चीज़ ही आया, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाता है वो हमारा दोस्त है। जिस दिन आपने वादा किया उस दिन अल्लाह के दोस्त में गिनती हो गया। अब दोस्ती निभाएं या दुश्मनी निभाएं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, है ना। दोस्ती करेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, अल्लाह कहता है अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया वो मेरा दोस्त है। अब बंदा था, शरीयत में बंदा था, तरीक़त में आया तो दोस्त बन गया। तो ये अच्छा चीज़ है कि खराब? हाँ, हिलाल भाई ये अच्छा है ना कि अल्लाह दोस्त बनाए, क्योंकि हम सब बंदे हैं। पहले बंदा, उसकी मानी, उसकी बंदगी की तो बंदा कहलाए। बंदा के माने हिंदुस्तानी भाषा में गुलाम, अल्लाह की गुलामी शुरू कर दी, मान लिया उसको। हाँ, बिल्कुल हम सब बंदे अल्लाह के। हाँ, तो अब जो है उस जगह से, बंदे से, बंदा तो है ही है, हाँ, और उस जगह से उठा करके अल्लाह दोस्त बना लिया। कब? तरीक़त में, जब आए मुर्शिद के हाथ पे, नायब रसूल के हाथ पे वादा किया, अल्लाह दोस्त बना लिया। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, यहाँ ईमान लाए एक पर। अब एक की बात मान के चलना पड़ेगा, वो भी अल्लाह कलम पाकी से बताएगा, इधर उधर से थोड़ी बताएगा। सुनना, तो अब हर चीज़ की उसमें, अब जितने आगे बढ़ेंगे उतने हिसाब है। तस्दीक तस्दीक तस्दीक, हर चीज़ का तस्दीक मिल जाएगा। और कलमा तौहीद की गवाही दी है पहले हम। हाँ, पहला कलमा पढ़े ना भाई, बच्चा पढ़ता है ना, तो अजमत कलमा, वो कलमा का अजमत क्या है जब तरीक़त में आते हैं तो मालूम होता है। क्योंकि अब यहाँ अल्लाह अब काम करेंगे तो ये खुलेगा, तो खुलेगा तो अजमत कलमा, कलमे की अजमत मालूम होगा। तो अब और कलमे की इज्जत बढ़ेगी आपकी निगाह में, आपके दिल में। नहीं, ये कलमा तो मामूली नहीं है। अजमत मतलब पूछे तो नहीं बताऊंगा। हाँ, अजमत मतलब कदर, कदर
बड़ाई भी नहीं होगी। हमारे कदर बढ़ जाएगा, बड़ाई बढ़ जाएगी। जी। हाँ। तो अब हम कलमे को समझेंगे, ला क्या है, इलाह क्या है, इल्लल्लाह क्या है, मोहम्मद, सबका एक एक दर्जा बना के रखा। हाँ, इसीलिए हमने एक मतलब बयान करके अब एक मतलब समझा भी दिए हैं कि राबिया बसरी से ख्वाब में देखी सरकार को, और सरकार पूछे कि राबिया क्या हमको दोस्त नहीं रखती है, तो बोली या रसूलल्लाह आपको कौन दोस्त नहीं रखेगा, लेकिन हम तौहीद में इतना गर्क हैं कि हमको दोस्त दुश्मन का कुछ पता नहीं है। तो इसी में डूबी। ला बड़ी मानी खेज है। एक आदमी बोला ला के माने नहीं हूँ, क्या ठीक है, लेकिन अब उसका हिसाब किताब लगाएगा ना तो भाई एक मोटा मोटी है तो हमने कलमा पढ़ी है तो 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे, मोटा मोटी बात हो गया। अब उसमें डूबना, तो जब इसमें आएंगे तरीक़त में तो अब नमाज भी का लज्जत मिलने लगेगा। तो नमाज तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी तो हम पढ़े अल्लाह अकबर, हाफिज जी को बताया ना कि हाफिज तो और तेज पढ़े, तो 2 मिनट में 2 रिकात पढ़ के चल दिए। तो नमाज की अजमत मालूम नहीं, बड़ाई मालूम नहीं, उसकी तारीफ़ मालूम नहीं है। तो जब इसमें आए तो अब क्या मालूम हो गया, हाँ रुकू मालूम हो गया, सजदा मालूम हो गया, तो अब तो देर होगी ना। जब उसमें देखने लगे सिफ्तों में तब उसी में तो बात होने लगी। हम भी सोच रहे थे एक मतलब पहले बात सुनते थे कि सरकार नमाज का नियत बांध लेते थे, 2 रिकात में सुबह हो जाता था। हाँ, पाँव में वर्म पड़ जाता है, पाँव फूल जाता था। तो हम सोचते थे कि एक रिकात में 15 पारा पढ़ते होंगे और दूसरा रिकात में पूरा ख़त्म कर देते होंगे, तो इसलिए इतना देर होता होगा। तो जब ये हमको ये चीज़ मिला तब समझ में आया कि हमको 2 रिकात में पौन घंटा हो जाता। हाँ, और क्या पढ़ते कुल अल्लाह सुनना, बैठा बैठा पढ़ते थे कुल अल्लाह। हाँ, एक नहीं 3 मरतबा पढ़ते थे और खड़े हैं। अब पौन घंटा हो गया तो अब हमको एहसास हुआ कि नहीं यही चीज़ या तो सरकार है। हाँ, तो अब उनका क्या बात पूछना है जब हमारा के 2 रिकात में पौन घंटा हो जाता। अब समझ में आया। तो तरीक़त में आने के बाद जब दोस्त बनता है आदमी तो धीरे धीरे जब ये साफ होने लगता है तो वो चीज़ अल्लाह ताला दिखाता है। अब उसमें आदमी गुम हो जाता है। नियत बना खड़ा है और गुम हो गया। हाँ, और जब सब देख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, फिर कुछ देखने लगा तो उसको तो सुबह हो ही नहीं जाएगा। हाँ, जब उसका चीज़ सामान नज़र आने लगेगा तो उसको तो सुबह हो ही नहीं जाएगा। तो इसी में लज्जत मिलता है। हाँ, जब मोमिन बनता है आदमी। अभी तो हाफिज जी हैं, कारी साहब हैं, बहुत जल्दी पढ़ेगा। हाँ, कहीं जबान तेज चलता तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह ना आते ना। हाँ, रुकू भी हो गए, सिजदा भी हो गए, फिर खड़ा हो गए 2 मिनट में 2 रिकात। तो ये 2 रिकात जो है ना 2 घंटे की भी हो सकती है जब इसमें आ जाएंगे तो। हाँ, अभी 2 मिनट में हो जाए, इसलिए कि हम बंदा हैं। हमने मजदूर रखा है, वो ड्यूटी करके किसी तरह भागना चाहता है, कहीं कुछ इधर सामान कुछ उधर सामान। हाँ, अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है। और हम फिर बाद में कहते हैं यार इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अच्छा हो गया, थोड़ा दाएँ बाएँ करके फिर हमारा टाइम हो गया। हाँ, तो शरीयत में बंदगी है, बंदा है तो इस तरीके से। लेकिन अब दोस्ती में आ जाता है, मोमिन हो जाता है।
हाँ, मुसलमान से अब मोमिन में आता है, तो अब इसकी तस्दीक होने लगती है। तो अब दो रिकात 2 घंटा, तो आके देखिए इसमें इसमें मेहनत करके देखिए, ये मोहब्बत की पढ़ाई है। और तुमको जाहिर मोहब्बत करने वाला मिल गया, मुर्शिद। अल्लाह कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे महबूब की पैरवी और उससे मोहब्बत करो। तो अब तो भाई मौलाना लोग को तो आगे मालूम नहीं है, इसलिए हमें बताएंगे, मदीना ही बताएंगे। तो हमको भी मालूम नहीं, उनको भी, वो अपने हद तक हैं। लेकिन यहाँ जब आप कलम पाक पढ़ेंगे तो समझने वाला चाहिए, तो समझता है वो, तो उस समझ वालों के पास हमको जाना पड़ेगा। हाँ, तो उस मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो उसमें भी निकाल दिए, वो ननज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। तो मोमिन के लिए न कहा है कि आप अपना मन से मोमिन बन गए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जो जुल्मत में है, गुमराही में है, अंधेरे में है, हाँ, उसको कुरान पढ़ेगा तो उसको खसारे और घाटे में डाल देंगे। कुरान ही खसारे और घाटे में डाल देगा, खुद कहता है। तो अब हम तो आलिम हैं, हम पास हो गए, निकल गए कि ना ये तो जाहिल आदमी के लिए है, वो नहीं समझेगा, बहुमती करेगा। हाँ, लेकिन नहीं, उस चीज़ को समझा नहीं, जुल्मत में, अंधेरे में। तो ये दिल का कल्ब अंधेरा है, इस रोशनी में नहीं देख पाएंगे। जब ये रोशनी फूटेगी तब कलम पाक को कह रहा है कि वो मोमिन है, उसके लिए कलम पाक है। और हर जगह मोमिन के लिए, ईमान वालों के लिए बात है ना, कि मुसलमान के लिए। तो मोमिन बनना पड़ेगा, फिर कलम पाक समझ में आएगा। हमारे आलिम समझें और लोगों को समझाएं। हाँ, और जो मुरीद हुआ है, हमने तस्दीक कराया, उसको याद रखें, उस पर गौर करें और फिर मेहनत करें। इंशाअल्लाह साल जाते जाते कुछ न कुछ ज़रूर हासिल हो जाएगा। तो अल्लाह दोस्त बना लिया, तो कितनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह बंदे से दोस्त कहता है। तो अब हमको क्या चाहिए? नमक हरामी करना? हाँ, चाहिए? नहीं चाहिए। हमको भी दोस्ती निभाना चाहिए। हाँ, हाँ। तो अब अल्लाह कहता है कि तुम दोस्ती निभा रहे हो हमारे साथ, तो हम तुमको और आगे बढ़ाएंगे। यख़्रुजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, हम तुमको गुमराही से, अंधेरे से निकाल के नूर के तरफ कर देंगे, उजाले के तरफ कर देंगे। तो उजाले के तरफ मतलब क्या है? ये दिल रोशन हो गया, कल्ब रोशन हो गया, आईना बना, तो अब आप उजाले में आए। अब उस उजाले में ये कलम पाक आसानी से समझ में आएगा। हाँ, पढ़ते जाएंगे, आईना सामने आता जाएगा। नमाज पढ़ते हैं, आईना बनता जाएगा, देखते जाएंगे। अब आपका नमाज 2 मिनट का नहीं होगा, लेट हो जाएगा। हम भी तेज पढ़ते थे बहुत, लेकिन हमसे भी तेज पढ़ने वाला मऊ में भेटाया। हम वजू करें तब तक वो लग नमाज पढ़ ले 3 रकात जमात के साथ ख़त्म। हम जब तक उठे तब तक 2 रकात और पढ़ ले। तो एक आदमी हमको चाहने वाला हो गया उसमें, तो खड़े रहे, हम तो नमाज देर से पढ़ें। बोले आप बहुत देर से पढ़ते हैं। हम भाई हमको कोई काम नहीं है, तुम लोगों का काम है, तुम लोग जल्दी पढ़ो। नहीं, यहाँ तो जल्दी होता है। तो वो नमाज कैसी? तो बंदगी का हिसाब है, तो बंदा राई छाई करके काम करता है, कुछ इधर फेंका कुछ उधर फेंका, क्योंकि गुलामी है और ड्यूटी है 8 घंटे का, और ड्यूटी हो गया, हमको पैसा चाहिए। तो अब तो भाई मकान मालिक आता है, देखता है कि ये ख़राब कर दिया, ये ख़राब कर, तुम लोगों को पैसा नहीं देंगे, काट लेंगे पैसा।
تو ایسے ہی ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کاٹ لے گا نا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس درجے میں آئیں، شریعت کو بھی نبھائیں. اور شریعت ہی کا تو سارا سامان طریقت میں ہے. ایک بھی شریعت کا سامان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ گیا. وہی سب چیز اب دوست بن کے کر رہے ہیں. اتنا ہی سامان کو 5 وقت نماز کو اب دوست بن کے پڑھ رہے ہیں. اب اس کی لذت دوسری تھی، اب اس کی لذت دوسری ہو گئی نا. فرق ہو گیا. وہی نماز کا نیت باندھتے ہیں تب اب آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے. وہی 2 رکعت کا نماز باندھے تو 2 منٹ ہو رہا تھا. تو دوستی اور بندے میں فرق ہو گیا. کہا کہ بھی ہم نماز پڑھیں تو بندگی کر ہی نہ رہے ہیں، لیکن دوست بن کے کر رہے ہیں تو اس کا لذت اور آگے بڑھ گیا. یہ ہمارے جو جتنے لوگ 1 ہفتے میں آزاد ہو گئے ہیں یہ بات نہیں سنی. ہاں، اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا کہ اب جب آپ کر ہی رہے ہیں، اللہ کو مان ہی لیا اور 5 وقت نماز پڑھنے ہی لگے تو تھوڑا سا تو باقی ہے. اس کے قاعدے قانون پہ شادی بیاہ کرنا، اس کے قاعدے پہ چلنا، باہری پاکی رکھنا. اور پھر کون نہیں چاہتا ہے کہ بھائی پرائم منسٹر، ہاں، پردھان منتری، وزیر اعظم، اردو میں وزیر اعظم کہا جاتا ہے، کہ اس سے اگر ہم سے دوستی ہوئی تو کتنا اچھا تھا. اور یہاں اللہ تو بلا رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمارا دوست ہے. اب جو جی کا دل چاہے دوست بنے. تو اسی مطلب جو شریعت کا سامان جتنا ہے وہ طریقت میں اب استعمال میں فرق ہو گیا. جس چیز کو ہم ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے تھے اب اس کو محبت سے کریں گے، ہے نا. تو اب محبت کی تو بھائی ایک تنکا بھاری ہوتا ہے. جو چیز محبت سے ہوتا ہے. ہاں، ایک بڑھیا ایک آدمی پیر صاحب کو 1.5 روپیہ تحفے میں دیا تو نظر تھی، اور لوگوں کو تو نہیں لیے. کہا کہ نہیں اپنے پیر کو دے دینا. وہ کسی کا مریض 2 لوگ تھے تو کہا کہ بھائی تمہارا پیر کا حق ہے، تم لوگ دے دینا اس کو. ہم آئے ہیں صرف تم لوگوں کا تھوڑا کام ہے، کر کے چلے جائیں گے. تو بولے کہ ایک بڑھیا دیا ہم کو 1.5 روپیہ. ایسے تو 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو دے رہے تھے ہم نے کسی کا نہیں دیا، لیکن بڑھیا کا دیکھا 1.5 روپیہ دیے تو اس میں دیکھا کہ بڑی محبت ہے تو ہم نے اس کو دے دیا نا. 1.5 روپیہ کو لے لیا اور 10 روپیہ 5 روپیہ 20 روپیہ جو دے رہے تھے. تو اس زمانے میں آج سے 20 اور 25 30 35 برس پہلے کی بات بتا رہے ہیں. وہ ہمارا ساتھی بھی تھے اس وقت. ہاں، چچا کہتے تھے. ان کو نظر تھی. ہاں، برابر ہم کو ساتھ میں رکھتے تھے، ذکر بھی ساتھی میں کرتے تھے. بعد کے ہم ادھر آ گئے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر ملاقات نہیں. تو محبت بھری چیز کو ایک تنکا بھی ہاں بغیر محبت کے چیز سے بڑھ کر ہے. ہاں، ایک تنکا محبت والی اور 100 سامان ہو بغیر محبت والی تو تنکا اس نامحبت والے پر بھاری ہے. تو اب محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اور کامیاب ہوں گے. اور اللہ جب دیکھے گا تو اپنے قریب کرے گا. یخرجہم من الظلمات الی النور. ہاں، میں اس کو ظلمت اور گمراہی سے نکال کے نور کے طرف کر دوں گا. اب جو ہے یہ قلب روشن ہو جائے گا. یہ مومن ہے. ہاں، مسلمان مومن نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لاتا ایک پر.
और एक की चलता नहीं है पर। अभी तो शरीयत का हिसाब है कि सबको मानो। आमनतो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। तो ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, तो सारे चीज़ों पर लाए भाई, अल्लाह की किताबों पर तो आदम इंसान से लेके अब तक। लेकिन अब एक पर, हाँ वो सब सही है, उसमें मत कहिए कि ये खाले में है, ये ऊंचे में है, ये ऐसा है वैसा नहीं। हमसे कोई चीज़ से ज़रूरत नहीं है। हाँ सब अपने अपने दर्जे पे ठीक है। हाँ ये हम मानते हैं, लेकिन चलते अपने मुर्शिद पर। जो हमारा मुर्शिद कहेगा वो हमारे लिए अदल है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए जहन्नम है। मन यासिल्लाह व रसूलहु फइन्ना लहु नारु जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाला, नहीं माना, तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो ये चीज़ है, तो तुमको कांटा थोड़ी दे रहा है, फूल दे रहा है। अब तुमको कांटा समझ के फेंक दो तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। रख दिया ताक पर। ये हिसाब है, इस हिसाब के तय चलना है। आप लोग नए नए अभी भाई, अब बहुत ज़्यादा हमको उम्मीद है कि आज़ाद भी हुए हैं एक हफ्ते में, क्योंकि जादूगर बहुत ज़्यादा काफ़ी पकड़ाया है। तो ये बताना ज़रूरी था कि ताकि आप लोग भी उसी में शामिल हो जाएं, फिर आगे दूसरा बात होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का? तो अब जो आप हमने देखा भाई, हमने कहा 5 वक्त नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए कि आपके भाई भी अल्लाह ताला उनको भी कर दे, आज़ाद कर दे। तो भाई का दर्द है ना, तो दिल से दुआ निकलेगा ना। जी बिल्कुल, हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो दुआ करते हैं तो अब अल्लाह ताला उन लोगों को भी आज़ाद करते जा रहा है। हाँ इसी तरह दुआ करते रहे तो एक भी आदमी किसी के कैद में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमने भाई जो कहा है वो लोग आप यहाँ भी सुने कि नहीं जैसा आप बता रहे हैं। हाँ इंशाअल्लाह हम लोग जो है अब इसी पे कायम रहेंगे। और जो भाई नमाज नहीं पढ़ने जानता उसको कहे कि भाई आप सीख लीजिए जल्दी से, कि बड़ा से ज़्यादा लोग एक साथ हाथ उठाएंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसका नाम ही है रहीम व करीम। उसका दुश्मन का नाम नहीं है कि तुमसे दुश्मनी करें। हम भी तो उसी के हैं, इंसान और जिन्नात सब तो उसी का न है। और इंसान और जिन्नात तो उसी का न है, और उसी के लिए दुनिया बनी है, यही 2 कौम के लिए। इंसान ही और जिन्नात के लिए पूरा दुनिया कायनात बना है, तुम्हारी खिदमत के लिए। तो अल्लाह कितनी मोहब्बत रखता है तब ना। और सिर्फ कहा कि हमको मान लो। अब हम अपने सरकशी में उतर गए। हाँ तो हमारे इम्तहान के लिए और भी सामान उतार दिया कि देखिए हमको मानता है, उसको मानता है, हमको मानता है, इसको मानता है। बस इतना ही है कि नहीं हम सब देख रहे हैं लेकिन मानते आप ही को। हाँ अल्लाह हम तुझी को मानते हैं, है कि नहीं? तो अब फिर कह रहा है कि तब हमको ढूंढो, हम कहाँ हैं। अब ये ढूंढने में शैतान जो है कितना फिरका बना दिया। अरे ये गलत है, अल्लाह को कोई देखेगा नहीं। अल्लाह कहता है हम सिफ्तों में मिलेंगे। तो हमारे नबी ने बताया ना, तफक्करू फी सिफ़ातिल्लाह, अल्लाह को सिफ्तों में ढूंढो। तब तो आसान कर दिया, लेकिन एक मुर्शिद चाहिए, एक रहबर चाहिए जो देखा हो। हाँ अब आप लोग जो भी मुरीद हो चुका है तो आया ना, हम लम यरफू रसूल हम, या नहीं पहचाना अपने रसूल को, तो रसूल बना लिए। तो देख तो लिए ना जाहिर, अब बातिन देखना है।
रसूल को जाहिर देख लिए, बातिन देखना है। तो अब बातिन में आपको तसव्वुर करते हैं तो आ रहा है, तो बातिन हम उसी के नूर से हैं, तो उसी का नूर न है बातिन में, तब पहचान हो गई ना। तो कलम पाक इस तरह दिया है, जिसको नहीं समझने वाला, हमारे आलिम उलमा नहीं बताए तो बात अलग है, लेकिन जो खानकाह वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, जिसका इल्म नहीं है अल्लाह उसको इल्म देता है, बताता है। अद्दा बनी रब्बी, मैं तालीम तरबियत अल्लाह कर देता है। हाँ, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से 20 सवाल किया यहूदी, कहा कि 20 सवाल का जवाब दे देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। पादरी था तो कहा ठीक है करो, हमारा खुदा है, हमारा रब है, वो सब बताएगा। तो आईने का तरह सब सामने आए, वो सवाल करता था, ये बताते थे। इसकी मिसाल हम आप लोगों को दें, अभी तो नहीं, लेकिन हमारे मुरीदों ही में, हाँ, वो बातिन देख रहा है। अब पहुंच गया अपने लड़के को पाने के लिए, अपने भतीजे को। उसका बाप कहा कि नहीं लिखा दो, तो अब वो अंग्रेजी बोल रहा है, ये अंग्रेजी तो जानता नहीं, फटपीर खड़े हो गए, बोले ये बोला है, इसका जवाब दे दो उर्दू में। तो हिंदी में अपना जवाब दे दे। तो समझ गया कि नहीं, बोल तो पूरा नहीं सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा है, समझ गया। हाँ समझ गया। इम्तहान देने वाली लड़कियां गई, नहीं पढ़ी हैं, हाँ हजरत हम दिखा दो, तो किताब दिखा रहे कि लिखो ये लिख लो। तस्दीक है तो हमारे यहाँ तो इल्म कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो आ जाएगा तो सारा इल्म तस्दीक के साथ हो जाएगी, है ना। और हमारे मुरीदों में हो चुका है जाहिरी, अभी आप लोग बाकी हैं, थोड़ा मोहब्बत चाहिए। तो कहा कि जितना मोहब्बत करोगे उतना हम करीब होंगे। हमारे महबूब की पैरवी और उससे मोहब्बत करो, तो जितना करोगे, अगर हमको चाहते हो उतना हम करीब होंगे, नहीं जितना दूसरे को चाहते हो तो दूसरे तरफ रहोगे। तो फानी चीज़ से मोहब्बत करके क्या फ़ायदा, जो बाकी रहने वाला चीज़ है उससे मोहब्बत करो, ताकि यहाँ वहाँ दोनों काम आए। ठीक है ना जी, समझ में बात आती है। कहाँ चलेंगे, पर फानी चीज़ों के बीच में ही तो हमें रहना है। तो ये तो इम्तहान की जगह है ना, ये तो आपको अल्लाह ने इसी चीज़ में पैदा किया कि तुम्हारी जो ज़रूरियात की चीज़ है सब हमने उसमें रख दिया है, ताकि तुम उससे फ़ायदा उठाओ। अब फ़ायदा उठाने का मतलब क्या है, हम उसी में लिपट जाएं, अल्लाह को भूल जाएं? नहीं, तुम साहेब हो, तुम साहेब हो, एक नौकर के, एक खादिम के नीचे मत जाओ। तुम्हारी दर्जा है, तुम्हारे लिए तो सब पैदा हुआ है, तुम्हारी खिदमत के लिए, तो उससे खिदमत लो। तुम खुद उसका खादिम मत बन जाओ। तुम बड़े हो, तुम्हारा वहदा बड़ा है, अपने वहदे को पहचानो। उस वहदे पर हम लाना चाहते हैं आपको भी और इंसान को भी, और जितना खुरफात है उस खुरफात से हम लोग दूर हो जाए, फिर तो अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखेगा, बहुत अच्छा देगा। ठीक है, इतना जा जा जा, तू जा, ध्यान से रोतिया लेके वहाँ चल जाओ, मत ही अब शैतान। पर ऐसी चीज़ों से लगाव हो जा रहा है, उनके बीच रहकर। हाँ ठीक है, क्योंकि माहौल भी तो एक चीज़ होती है। तो इसीलिए तो कहा कि जितना मुरीद है अपना माहौल में रहें, हाँ, और जितना गैर अभी हैं तो उसके माहौल में ज़्यादा वक्त मत दें, अपने माहौल में वक्त दें और उस माहौल में जाएं आप और अपनी माहौल फैलाएं। देखिए हमको जो प्रैक्टिकल हुआ है ना, वो हम बता रहे हैं।
हम जब अकेला पड़ गए, हमको दुकानदारी करके जीना है। हमारे मियाँ बीवी मिल करके 8 बच्चे, 6 वो 2 हम, 8। तो हमको भाई उसका तो उसी के माहौल में जाना ही पड़ेगा, बाज़ार डेली जाना। सब्जी वगैरह ना ही लाएंगे तब होगा कैसे? और फिर उन्हीं लोगों से मुलाकात होगा दिन रात। और एक बिजनेसमैन से बात करेगा तभी ना उसका लाइन मालूम होगा। जी हाँ, जी। तो हम अपना बीता बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला आप कैसे बचेंगे। तो फिर कैसे बचे? बता रहे हैं, सोचने लगे हम। सोचते 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 अल्लाह ताला दिमाग में डाल दिया। देखो, बचने वाला को अल्लाह बचाता है कि तुम अपना माहौल फैलाओ। बोले हाँ ये तो ठीक है। अब जो मिले हमसे तो 1-2 बात करता रहे, अपना दुनिया का करता रहे, उसमें काट करके हम उसी को लाइन धरा के अब अल्लाह रसूल वाला कर दें। या तो सुने और नहीं तो भाग जाए। भाग गया तो भी कोई बात नहीं है, सुना तो अच्छा ही है। इस तरीके से करके हमने बचा लिया, अपने माहौल बना लिया। जहाँ जाए तो वहाँ, यहाँ देर हो जाए आने में, जो बैठे जिसके यहाँ बैठे तो हम यही छेड़ दे सामान। तो हमने बचा लिया उसको। अगर हम अपना खामोशी रहते तो उसका माहौल हमारे ऊपर चढ़ जाता। तो हम खामोश नहीं रहे, बताते रहे। और हमने हलाल कमाया। अब दूसरी जगह अब थोड़ा सा गड़बड़ाया हमको कि भाई अब तो उतना पावर नहीं है, तो इसको ले लिया। कहा कि भाई हम तो भाई लालच दुनिया का नहीं है, ये अल्लाह अब हम कैसे बचे? हो सकता है ये मिला दे, 2 नंबर काम कर दे। हाँ, तो हम कैसे बचेंगे? हराम खा करके तो अल्लाह रसूल नहीं होता, कैसे बचेंगे? तो परेशान थे 1 हफ्ता। तो फिर हमारे दाहिने कान में आवाज़ आया कि तुम अपना मजदूरी खाओ। हाँ, तुम डेली बाज़ार जाते हो, सामान लिया के दे दो, तुम मालिक बनना छोड़ दो। अब तक मालिक थे तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम मालिक बनना छोड़ दो, जो मजदूरी करते हो वही खा लो। तो अल्लाह अकल दिया ना, हमने उसको मालिक बना दिया। लोग बोले जाए मेहरारू को पैर तराई। हमारे तो भाई फायदा चाहिए ना, मेहरारू को पैर की बात। हमने कहा कि तुम्हारा मैनेजर है, तुमको बता रहे हैं, तुमको घाटा नहीं लगने देंगे, लेकिन हम मालिक तुम रहो। हम ला करके सस्ता से सस्ता सामान देंगे तुमको कि 2 पैसा बच जाए तुमको। हाँ, और गर्जी वाला काम ना करो, और तुम्हारा हिसाब किताब भी करेंगे। ऐसे तो आप बच गए, और वो? हाँ, वो भी बची है। उसको जो जिसके साथ रहेगा ना, देखो जो लकड़ी चंदन में सटता है ना, तो कुछ न कुछ उस लकड़ी में असर आ जाता है, खुशबू आ जाती है। अगर सांप ही बन के सपट गया तब उसमें कहाँ, वो तो ठंडक ले रहा है, उसे जहर जाएगा नहीं उसका। यानी तो अगर लकड़ी बन के सटेगा तो उस लकड़ी में भी खुशबू आना ही आना है। हाँ, हमारा पूरा घर खानदान अलग है, लेकिन हमारा घर एक माहौल में है। जो हम करेंगे वो लोग करेंगे। ठीक है, टाइम कम हो गया। अरे बाबा, ठीक बा ठीक बा ठीक बा। भरोसा नहीं किए हमको, अपने पीर पर भरोसा है ना। ये तो हमारा आँख कहाँ है, न आँख है न कान है। तो हमारा पीर है ना। मजाल है कि आ जाएगा का? हमारा पूरा पक्का ही 100 में 110 120 का, उस पर हमको भरोसा है, नुकसान नहीं देगा। हम उसका काम कर रहे हैं, वो हमारे नुकसान में डालेगा क्या?
وما علینا الا البلاغ. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد بعزت العزت الفا فمرتا. اللہم انت السلام منک السلام علیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالى یا جل جلالہ والاکرام. الہ العالمین جو کچھ ہم لوگ کہے سنیں اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بھول ہوئیں جو ہم سے غلط بات نکل گئی اللہ تو معاف فرما دے اور ہم لوگوں کو کہنے سننے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور سب کو کامل مرشد عطا فرمائے. اللہ العالمین جو تیری پہچان تک لے جائے اللہ اللہ کے رسول کی پہچان تک لے جائے اسے پہچان کر آئے اللہ ویسی مرشد عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس میں ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی ایک مددگار دے اپنا ایک دوست دے جس کے ذریعہ ہم فلاح پائیں. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم صلی وسلم علیہ وعلیہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ